Hello, welcome students. The topic of today is web portal. See, a web portal is a gateway to a wide range of internet services. मतलब एक ऐसी वेबसाइट जो कई सारी इंटरनेट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है, सच एज ईमेल, सर्च इंजन, ई-कॉमर्स, etc. A web portal is also a type of website but with a huge range of offerings. मतलब अगर आप सिंपली ये कहो कि वेब पेजेस आर कलेक्शन ऑफ कोड दैट यू हैव रिटन टू रन ऑन वेब पेज ऑन वेब ब्राउज़र. वेब sites are collection of interlinked web pages, and web portals are a huge website that offers different and a wide range of services. Moreover, unlike a website, it does not contain information on any topic. Instead, it suggests related web pages to the user to find the desired information and links to the related sites. तो सिंपल जो वेबसाइट होती हैं उसके जैसे ये कुछ इन्फॉर्मेशन को होस्ट या रिप्रेजेंट नहीं करता है. इंस्टीड इसका यूज़ करके हम बाकी वेब पेजेस को ब्राउज़ कर सकते हैं. जैसे अगर हमने कुछ इसमें सर्च किया तो ये हमें और सजेशंस देगा कि वी कैन यूज़ दीज पर्टिकुलर वेब पेजेस to accomplish our task. Nowadays, most of the search engines are acting as web portal to present information from diverse sources in unified way, like Yahoo, MSN, Google, etc. All these are now example of web portals. Now, it is very important to differentiate between a website and web portal, which is given in this tabular differentiation. So we can differentiate web portal and website on the basis of definition, authentication, personalization, customization, linkage. So first of all, if we talk about definition, तो अ वेब पोर्टल इज़ अ गेटवे टू अ वाइड रेंज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वेब पोर्टल एक गेटवे है जो एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ सर्विसेज हमको ऑफ़र करता है. Whereas a website is a collection of related web pages containing images, videos, other digital media set under the same domain name. Now if we talk about authentication, तो web portal it requires authentication measure like login and provide information accordingly. For example, Gmail and Rediff Mail first require your login credential and then they provide you a wide range of information, whereas no authentication is required, like anyone can see the content. For example, cbseacademics.in, www.ncrt.in. These are the website where we do not need a login ID and to access its content. Now, next thing is personalization. तो web portal provide focused and personalized information, whereas a website provide extensive content to fulfill the need of a wide range of users. A user can access and use the provided information as per his desire. That means जो वेबसाइट होती है वो उसमें जो भी सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड करती है. अब आपको चूज़ करना है कि उसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन सी सर्विस आपके मतलब की है, आप उसको यूज़ करेंगे. If we talk about customization, the user can select and organize the contents he want to access in web portal. User अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है उन कंटेंट्स को जो उसको ज़रूरत है. whereas the content is सर्चेबल बट नॉट कस्टमाइजेबल. अगर वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट के कंटेंट सर्चेबल तो होते हैं, हम सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसको हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़
नहीं कर सकते। इफ़ वी टॉक अबाउट लिंकेज, तो इट इज़ जनरली लिंक्ड टू वेरियस वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड द रिलेवेंट वेब सर्विसेज, whereas in web sites it generally linked to its own web pages। तो वेब पोर्टल बहुत सारे वेब पेजेस से, बहुत सारी वेबसाइट से कनेक्टेड होता है, लेकिन जो वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, वो अपने ही डोमेन के वेब पेजेस से कनेक्टेड होते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल, तो यूनिवर्सिटी और कैंपस वेबसाइट, सर्च इंजन, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ वेब पोर्टल्स, whereas kips.in, aktu.ac.in, UPSC, so these are example of websites. So to conclude we can say that a web portal is loaded with a multitude of features and the website is just information centric. So these are the differences between website and web portal. Now the next thing that come here is web page. A web page is digital page which may contain text, hyperlink, video, audio, images, tables, etc. तो ये जो वेब पेजेस होती हैं ये डिजिटल पेजेस होती हैं जो हम HTML या ऐसे ही सिमिलर लैंग्वेजेस में डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हाइपरलिंक्स होती हैं, टेक्स्ट होता है, वीडियो होता है, ऑडियो होता है, इमेजेस, टेबल्स, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इट इज़ कॉमनली रिटन यूजिंग HTML, और इसको HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करके अक्सर बनाया जाता है एंड इज़ स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर्स। ईच वेब पेज इज़ आइडेंटिफाइड बाई अ यूनिक वेब एड्रेस कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट एज URL. So web pages are designed in website development language like HTML and stored on web servers, and every web page is having a unique URL. Now the next topic is components of a web page. So although autonomy of one web page may differ with that of another, as there are multiple ways in which a web page can be designed. However, there are some common elements which every web page contains. तो वेब पेजेस जो हम बनाते हैं वो अलग अलग नीड से, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग तरीके के हम बनाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारे वेब पेजेस में कॉमन होती हैं, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैम। तो लेट अस डिस्कस दीज बेसिक एलिमेंट with the image of web page given on the next page। जो नेक्स्ट पेज पे आप यहाँ देख सकते हो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो CIET की वेबसाइट है वो यहाँ पे दी गई है। तो अब हम अगर इसको कंसिडर करें तो फर्स्ट कंटेंट एलिमेंट ऑफ वेब पेज। The content of web page is made up of hypertext and hyperlink. Hypertext, it refers to the digital text that has a unique feature of linking to other document or web page. It generally highlighted in some different color on web page. When you click on the hypertext, it will open a new web page. Hypertext may be in form of text, graphics, video, audio, etc. It is then called a hypermedia as it is not confined to only text. तो ये जो hypertext है ये कुछ भी हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, जिसको जब हम क्लिक करेंगे तो नया वेब पेज हमारा ओपन हो जाएगा। ये एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दी गई है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे और प्लीज़ इसको याद भी कर लीजिएगा कि इट इज़ कॉल्ड एज हाइपरमीडिया एज इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू ओनली टेक्स्ट। तो चूँकि जो हाइपर टेक्स्ट है उसमें केवल सिंपल प्लेन टेक्स्ट नहीं होता है, इसमें ऑडियो हो सकती है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, दैट इज़ वाई इट इज़ रिफर्ड टू एज हाइपर टेक्स्ट। नाउ हाइपरलिंक, तो it is an electronic link providing direct access from a hypertext in a HTML document to another document or an object in the same document.
In other words, a hyperlink offers web users a reference to data that they can follow by clicking on it. When you have hover a hyperlink, the mouse pointer changes to the symbol of hand pointing a link. तो हाइपरलिंक पे जब आप अपने माउस के पॉइंटर को ले जाएंगे तो हैंड का सिंबल बन जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे अगेन एक नई वेब पेज आपकी ओपन हो जाएगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट थिंग इज सोर्स कोड। तो सोर्स कोड कंटेन्स इंस्ट्रक्शन अबाउट द लेआउट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज which we generally write in website development language like HTML. It also defines the content of the web page. These instructions are used by the browser to display the page. So these are the three main important things that comes under the content element of the web page. Now what makes a web page works? कैसे हमारा वेब पेज काम करता है? तो वेब पेज इज़ बेसिक यूनिट ऑफ एवरी वेबसाइट, एज एवरी वेबसाइट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस और अ डॉक्यूमेंट ऑन वेब विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन। तो हम वेब पेज को कह सकते हैं कि ये हमारे वेबसाइट्स का बेसिक यूनिट है या ये एक डॉक्यूमेंट है जो इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है। It is created and organized using the web page development tools like HTML for static content or scripting language like Perl, JavaScript for dynamic content. The success of any website depends on the creation of web pages with good information, nice layout and appropriate pictures. तो वही वेबसाइट सक्सेसफुल होती है जो रिच इन्फॉर्मेशन, गुड इन्फॉर्मेशन को कंटेन करे, जिसका लेआउट आई कैचिंग हो और जिसमें जो पिक्चर्स हैं, इमेजेस लगाए गए हैं वो एप्रोप्रिएट हों। तो लेट अस हैव अ ग्लैंस एट द स्टेप्स डिपिक्टिंग द वेब वर्किंग ऑफ वेब पेज। फर्स्ट, The source code of web page is written using a web development tool. जैसे आपने HTML में आपने प्रोग्राम लिखा और एक वेब पेज को बनाया। Now a request is made by the user for the web page by typing its URL in the browser. तो एक HTML का प्रोग्राम या एक वेब पेज बना हुआ है, यूज़र ने एक URL डाला, उस पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट किया। नाउ द वेब ब्राउज़र ट्रांसफर द रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर वेब ब्राउज़र टू ट्रांसफर द रिक्वेस्ट टू द अप्रोप्रिएट वेब सर्वर वेयर द वेब पेज इज़ स्टोर्ड। नाउ द रिक्वेस्ट गेट प्रोसेस्ड बाय द वेब सर्वर। द वेब पेज इज़ लोकेटेड एंड सेंट बैक टू द ब्राउज़र। द ब्राउज़र इंटरप्रेट्स द फाइल एंड डिस्प्लेज ऑन द स्क्रीन। इस प्रोसेस को आप डायग्राम के थ्रू आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो यूज़र है यहाँ पे, इसने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके पहले वेब ब्राउज़र में URL टाइप किया। तो वेब ब्राउज़र में URL उसने टाइप किया, जैसे लिखा www.google.com। तो वेब ब्राउज़र जो वो यूज़ कर रहा है या मोज़िला है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है या क्रोम है या ओपेरा है, इन सब का यूज़ करके उसने रिक्वेस्ट किया, URL पास किया और वो जो रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले गया वेब ब्राउज़र के पास। यहाँ पे उसने URL पास किया। अब वेब ब्राउज़र ने उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया वेब सर्वर के पास, जिसके पास वो वेब पेज एग्जिस्ट कर रही है। अब इस वेब सर्वर ने इस पर्टिकुलर डेटाबेस में, जो सोर्स कोड का डेटाबेस है, इसमें उस पर्टिकुलर वेब पेज को ढूंढने के बाद उसने जो रिक्वेस्ट है उसको रिस्पॉन्ड किया और वो जो डेटा है वो वेब ब्राउज़र के पास गया और वेब ब्राउज़र ने उस डेटा को डिकोड किया और फिर यूज़र के सामने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एसेसिंग द वेब पेज और वर्किंग ऑफ वेब पेज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट। तो अ वेब पेज इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ एवरी वेबसाइट, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वेब पेज क्या होती है।
ये वेबसाइट की बेसिक यूनिट होती है, इन्हीं से मिल के हमारी जो वेबसाइट है वो बिल्ट होती है। वेयर एज अ वेबसाइट इज़ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कनेक्टेड बाई लिंक्स। A web page contains information on a specific topic, whereas a website contains information on a subject. तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे मान लो अगर कोई वेबसाइट है किसी बैंक की, तो पूरे बैंक की एक वेबसाइट होगी। अब उस वेबसाइट में पर्सनल लोन के लिए एक वेब पेज होगा, मॉर्गेज लोन के लिए दूसरा वेब पेज होगा, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए तीसरा वेब पेज होगा, मोबाइल बैंकिंग के लिए चौथा वेब पेज होगा, प्रोविडेंट फंड के लिए अलग वेब पेज होगा। तो इस तरीके से जो अलग अलग सर्विसेज वो ऑफ़र करते हैं उनके लिए अलग अलग वेब पेजेस होंगे। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वेबसाइट एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, वेयर एज वेब पेज उनकी टॉपिक्स को रिप्रेजेंट करती है। A web page can be compared with a single page of a book, whereas we can compare a website with a book. The several web pages of a website can be about us, contact us, testimonials, products, services, facts, etc. And if we talk about website, so a website may just have a home page or it have other internal web pages in addition to the home page. Now, each web page is identified by a unique web address called Uniform Resource Locator within a domain, whereas a website has all its web pages accessible via the same domain name. So these are the differences between a web page and website. Now the next topic is web browser. तो वेब ब्राउज़र आई थिंक सबको पता होगा आप लोगों को कि वेब ब्राउज़र वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या जिसको हम बोलते हैं वेब क्लाइंट, जिसका यूज़ करके हम वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को ब्राउज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो अ वेब ब्राउज़र इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड टू विजिट डिफरेंट वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट by providing the browsers with their respective address called URL. It is an interface between a user and World Wide Web. तो वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके हम इंटरनेट पे वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं उनके URL के द्वारा। ये एक इंटरफेस है जिससे यूज़र www दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ सकता है। A user can navigate files, folders and websites with the help of hyperlinks. The feature and facilities offered by a web browser include download, bookmark, password management, etc. It also provides functions like spell checking, search engine toolbars, tabbed browsing, advertisement filtering, etc. HTML keys, SS keys and pop-up blocking. A web browser can have graphical user interface or it can be text-based interface. तो वेब ब्राउज़र का यूज़ करके हम नेविगेट कर सकते हैं वेबसाइट्स में, फाइल्स में, फोल्डर में, हाइपरलिंक के थ्रू। वेब ब्राउज़र में डाउनलोड, बुकमार्क, पासवर्ड मैनेजमेंट ये सारी सर्विसेज होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं। ये फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसमें आप स्पेल चेकिंग कर सकते हैं, इसमें सर्च इंजन के टूल बार्स लगा सकते हैं, आप टैब्ड ब्राउजिंग कर सकते हैं। टैब्ड ब्राउजिंग में आप एक ही वेबसाइट में कई सारे टैब ओपन कर सकते हैं और उन टैब में अलग अलग वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट को फ़िल्टर कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको वेब ब्राउज़र के अंदर मिलते हैं। नाउ GUI बेस्ड ब्राउज़र, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि दो तरीके के वेब ब्राउज़र हमारे होते हैं। इधर इट कैन बी CUI बेस्ड, दैट इज़ जिसको बोलते हैं टेक्स्ट बेस्ड, और दूसरी होती है GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड। तो अ GUI बेस्ड ब्राउज़र इज़ डिज़ाइन टू रेंडर कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, ऑडियोज़, वीडियोज़ एंड एनिमेशन और टेक्स्ट। मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र नाउ डेज आर GUI बेस्ड। आप लोग जो भी कंप्यूटर में ब्राउज़र यूज़ करते हैं ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ GUI बेस्ड ब्राउज़र।
and are used widely to access web-based content. Navigation can be done by pointing and clicking with a mouse on highlighted words and graphics, that is on hyperlinks. तो हम hyperlinks का यूज़ करके अलग अलग वेब पेजेस में नेविगेट करते हैं. These browsers demand a large amount of bandwidth and CPU resources by rendering high quality content like videos and animations. तो अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे मॉडर्न वेब ब्राउज़र्स के. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र. तो टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र आज की डेट में यूज़ नहीं किए जाते हैं. ये पहले यूज़ किए जाते थे जब इंटरनेट शुरुआती दौर में था, और इसका यूज़ करके हम केवल टेक्स्ट बेस्ड डेटा को ही एक्सेस कर सकते थे. तो टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र डिफर फ्रॉम द GUI बेस्ड ब्राउज़र इन द काइंड ऑफ कंटेंट एंड दे कैन डिस्प्ले. अ टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र प्रोवाइड एक्सेस टू वेब in text mode only. Navigation can be done by highlighting emphasized word on the screen with the up or down keys and then pressing the enter key to follow the link. Text-based browser demands low bandwidth as they do not require CPU resources for the content, and text-based browser are especially useful with speech synthesis. Linux is an example of text-based browser. But nowadays we don't use these browsers at a very large extent. कहीं कहीं पे स्पीच सिंथेसिस के लिए इसका आज के डेट में भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेब एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं URL. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जितनी भी वेब पेजेस होती हैं उनका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, दैट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट इज़ URL. So now we are going to talk about it in detail. The Uniform Resource Locator denotes the global address of web document and web resources. The communication between a web user and an internet resource is possible by identifying each resource on the internet in a standardized manner. तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको URL बोलते हैं, ये वेब डॉक्यूमेंट या वेब रिसोर्सेज का एड्रेस है. अब अगर कभी भी कम्युनिकेशन हो रही है वेब यूज़र की इंटरनेट रिसोर्सेज के साथ, तो एक स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कि आप राइट इन्फॉर्मेशन को, राइट पेजेस को ही, राइट सर्विसेज को ही एक्सेस करें. तो अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज़ the same as uniform resource identifier. URL or URI both refers to the same thing. So URI, it can be defined as a string of characters that is used to identify resources on the internet. For example, अगर आप एक URL को कंसिडर करें कि HTTPS hypertext transfer protocol secured www.india.gov.in/india/state/india. तो ये एक URL है. अब इसमें हम एलिमेंट्स की अगर बात करें, इस URL के एलिमेंट्स की, the components of URL are as follows. The first thing is the scheme. This is the first part of web address, also known as protocol identifier. It tells the internet browser which protocol need to be followed to access the address. मतलब जो आपने URL एड्रेस पास किया है उसको एक्सेस करने के लिए किस रिसोर्स की ज़रूरत होगी, ये चीज़ डिफ़ाइन करता है ये जो पहला एलिमेंट है स्कीम, वो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने लिखा है HTTPS:// एंड देन in www.india एंड सो ऑन,
तो हियर द स्कीम इज HTTPS. अदर फ्रिक्वेंटली यूज्ड स्कीम्स आर FTP जिसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल टू जिसको बोलते हैं ईमेल प्रोटोकॉल एटसेट्रा, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द होस्ट. So the second part of the web address identifies the host. The host starts typically with www, which indicates the World Wide Web. This tells the browser where the resource, that is, the site is located on the internet. If the web address is an internet, it will not begin with www because it is internal website that can be viewed only by the internal computers of the organization. तो अगर जो हमारी वेबसाइट है अगर इंट्रानेट पे है तो हमें www को यूज़ नहीं करना होता. अदरवाइज इफ़ इट इज़ पार्ट ऑफ इंटरनेट देन वी हैव टू बिगिन विथ www. तो देखो इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच का डिफरेंस भी जान लो. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन INTERNET एंड INTRANET. तो इंटरनेट इज़ पब्लिक नेटवर्क. ये पब्लिक नेटवर्क है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी मैनेज कर सकता है. और ये www वर्ल्ड वाइड वेब के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है. वेयर एज इंट्रानेट इज़ प्योर प्राइवेट नेटवर्क एंड इट बिलोंग्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी. जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इंटरनेट तो आप समझ ही रहे हो. इंट्रानेट क्या हो सकता है, कोई जो बैंक है उसका जो नेटवर्क होगा दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंट्रानेट. कि उसके जो ATMs हैं या उसकी जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं वो आप किसी और तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते हो. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट थिंग इज़ द डोमेन. तो a domain name follows the host. It is a unique name given to each website. The domain name consists of two parts. One is the name of the domain and other is the web extension जिसको बोलते हैं domain extension या simple इसको एक और नाम देते हैं TLD जिसको बोलते हैं T stands for top, L for level and D for domain. जो वेब एक्सटेंशन होता है दैट इज़ आल्सो नोन एज टॉप लेवल डोमेन. तो ये भी आप याद रखिएगा TLD. अ वेब एक्सटेंशन टेल्स द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंट्री it belongs to. All domain extensions are monitored and regulated by the Internet Corporation for assigned name and numbers जिसको बोलते हैं ICANN. For example, .gov extension is used with the official government website and commercial organization use .com. Domain names are easier to remember than IP address since a name has a strong correlation with the website. The domain name system serves as dictionary for the web by locating an address service in a worldwide network. Example अगर हम लिखें तो https:// ये दिया हुआ है. इसमें india.gov.in जो है ये डोमेन नेम है जिसमें .gov.in क्या है, टॉप लेवल डोमेन है. Then the last thing is the path. This is the last part of the URL. The path tells the browser regarding the file to be used for the domain dictionary. For example,
in https://www.india.gov.in/india-glance/states-india, इसमें india-glance/state-india, this is the path. Now some common domain names, तो कुछ common domain names की हम बात करेंगे, डोमेन एक्सटेंशंस की बात करेंगे. तो देखिए इंटिटी में कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल अगर आप देखें तो कॉमर्शियल के लिए यूज़ करते हैं .com, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं .int, गवर्नमेंट के लिए यूज़ करते हैं gov, नेटवर्क के लिए नेट, ऑर्गेनाइजेशन के लिए org, एजुकेशन के लिए edu, इंफॉर्मेशन के लिए info, बिजनेस के लिए बिज, मिलिट्री के लिए मिल, एशिया स्पेसिफिक के लिए .asia, मोबाइल डिवाइसेस के लिए मोबी और एयर ट्रांसपोर्ट के लिए एरो. तो ये अलग अलग डोमेन हैं जो यूज़ किए जाते हैं. साथ ही साथ ये भी आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कहीं आपको मिल रहा है .in, मतलब ये इंडिया का है, .eu तो ये यूरोप का है, .uk तो ये यूनाइटेड किंगडम का है, .us तो यूनाइटेड स्टेट्स का है, .pk अगर कभी मिलता है तो ये आप एसेस ना किया करो, ये बिलोंग करता है पाकिस्तान से, जो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं. ऐसे ही और भी हमारे डोमेन्स होते हैं, तो उसको भी आप ध्यान में लेके चलेंगे. तो IN इंडिया, PK पाकिस्तान, US यूनाइटेड स्टेट, UK यूनाइटेड किंगडम, JP जापान, FR फ्रांस, DK डेनमार्क एट्सेट्रा, ये सब अलग अलग कंट्री के अलग अलग डोमेन नेम्स होते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ HTML. तो ये जो टॉपिक है आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस लेसन कि व्हाट इज़ HTML. इसमें आपने प्रोग्राम्स भी देखे हैं, हाइपरटेक्स्ट, मार्कअप लैंग्वेज, इनके बारे में आप पूरा पढ़ चुके हो. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम protocols that we use on internet like TCP, IP, HTTP, FTP, etc. So we are going to talk about that in detail in next video. If you are having any doubt, please feel free to contact. Thank you.